साईराम सर। साईराम आदित्य। साईराम आदित्य। Okay, so let us begin with chanting of Omkar. Sairam. So we are discussing about large scale fixed shop retailers. Okay. So in this category, we have only two organizations in our syllabus. First, we have discussed yesterday, that was a departmental store. And second large scale retailer is the multiple shops or chain stores. Okay, multiple shops or chain stores. So what are the multiple shops or chain stores? These multiple shops or chain stores are a network of retail outlets or retail shops which are established by a manufacturer in different cities of the country, different parts of the country. So a network of retail shops is being created by the manufacturer to sell their own goods. That is called as multiple shops or chain shop, multiple stores or chain shops. It is called chain shop because it's chain of shops, you know. So they open their own shops in different cities of the country. That makes a chain of the shops, and through these shops, they sell their own product. Manufacturers sell their own product. These shops are commonly known as showrooms, है ना? Bata showroom or Raymond showroom. So these manufacturers directly sell their own product by eliminating middlemen. So normally we discuss that goods are manufactured by manufacturer, then they are sold to the wholesaler. Wholesaler purchase goods from retailer, and then retailer sell goods to the consumers. So there are two intermediaries, wholesaler and retailer, which are eliminated by the company by these chain shops. So companies sell their products by its own shops. The network of shops is created depending on the demand of the product. If there is demand in every city, even there may be many shops in the same city if there is a demand. है ना? अभी तक का बेस्ट एग्जांपल है बाटा इंडिया लिमिटेड. तो बाटा कंपनी अपने शूज जो बेचती है बाटा का ही शोरूम पे मिलेंगे आपको, है ना? दे हैव देयर ओन शोरूम्स एंड थ्रू देयर ओन शोरूम दे सेल देयर प्रोडक्ट्स. यूरेका फॉक्स एक कंपनी है जो हाउसकीपिंग मटेरियल बेचती है. दे आल्सो सेल देयर प्रोडक्ट्स बाय देयर. अभी लास्ट ईयर से पहले तक पतंजलि का भी यही कंडीशन थी. पतंजलि वाज सेलिंग देयर प्रोडक्ट थ्रू पतंजलि शॉप्स. पता है आपको पतंजलि के प्रोडक्ट कहाँ मिलते थे? पतंजलि की दुकान पे मिलते थे. अभी भी है उनके पतंजलि शॉप, बट नाउ दे आर यूजिंग बोथ द मेथड्स, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड इनडायरेक्ट मार्केटिंग. तो पतंजलि की शॉप पे भी मिलती है और उन्होंने बाकी शॉप्स को भी देना चालू कर दिया है. सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज चेन शॉप्स और मल्टीपल शॉप्स. इज इट क्लियर साईराम? यस सर. यस सर. द पर्पज क्या है? पर्पज इज टू एलिमिनेट द मिडिलमैन. बीच में मिडिलमैन होते थे होलसेलर्स एंड रिटेलर.
उनको हटाना है, सो प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड टू द कस्टमर एट ए रिलेटिवली लो प्राइस। अगर मिडिल मैन नहीं होंगे तो उनका प्रॉफिट नहीं होगा, है ना, तो इसलिए प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता मिल जाएगा कस्टमर को। दैट वे कंपनी ट्राइज टू डेवलप देयर ओन नेटवर्क ऑफ सप्लाईज और चेन ऑफ सप्लाईज, दैट इज कॉल्ड एज चेन शॉप्स और मल्टीपल शॉप्स। नाउ आई एम रीडिंग फ्रॉम दिस बुक। Chain stores or multiple shops are network of retail shops that are owned and operated by manufacturer or intermediaries. Under this type of arrangement, a number of shops with similar appearance, इनकी दुकान का जो डेकोर होता है वो सेम होता है, देखने में बाहर से एक सी दिखती है, उनका बोर्ड होगा, डिस्प्ले होगा, दैट इज सेम। तो कहीं भी आप जाएंगे तो आप किसी भी टाउन में जाएंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस कंपनी का शोरूम है। तो similar appearance are established in localities spread over different parts of the country. These different shops normally deal in standardized and branded consumer products, which have rapid sales turnover. These shops are run by the same organization and have identical merchandising strategies with identical products and display. तो इनका प्रोडक्ट भी वही होता है, क्वालिटी भी वही होती है, रेट भी वही होता है, इनका कहीं भी खरीदना है प्रोडक्ट को, डिस्प्ले भी सेम होता है। जैसे बाटा कंपनी का कोई आपको पेयर ऑफ शूज खरीदना है तो चाहे गुना से खरीदो, चाहे दिल्ली में खरीदो, चाहे मुंबई में खरीदो, वो सेम ब्रांड के शूज मिलेंगे आपको, वैरायटी सारी वही मिलेगी सेम हर जगह, और उसका रेट भी सेम मिलेगा। ऑल ओवर द कंट्री द रेट विल बी द सेम, है ना। और शॉप का जो डेकोरेशन है, अपीयरेंस है आउटसाइड, वो भी सेम होता है इसमें, ठीक। Some of the important features of multiple shops are as follows. पहला क्या है, लोकेशन, है ना, फर्स्ट फीचर ऑफ लोकेशन। कल आपने पढ़ा था डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर सेंट्रली लोकेटेड, जो मैंने बताया था कि आजकल पॉसिबल नहीं है, बट वो पॉइंट में लिख सकते हैं। बट दीज चेन शॉप्स और मल्टीपल शॉप्स आर नॉट सेंट्रली लोकेटेड, बट दीज शॉप्स आर लोकेटेड इन फेयरली पॉपुलस एरियाज ऑफ द सिटी। जिस हिस्से में सिटी में ज्यादा पॉपुलेशन होती है, जहां को लगता है कि डिमांड आ जाएगी काफी, वहां पर ही अपनी दुकान खोलते हैं। तो दीज शॉप्स आर लोकेटेड इन फेयरली पॉपुलस लोकेलिटीज वेयर सफिशिएंट नंबर ऑफ कस्टमर्स कैन बी अप्रोच। तो एक सिटी में बहुत सारी दुकानें हो सकती हैं इनकी, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। बड़ी सिटी है, बहुत कस्टमर है उसमें, तो एक दुकान से नहीं आएंगे सारे लोग, तो दे कैन ओपन देयर शॉप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी आल्सो। The idea is to serve the customer at a point which is nearest to their residence or workplace rather than attracting them to the central place. तो इनकी स्ट्रेटेजी अलग होती है कि हम कस्टमर के घर के पास चले जाएं, in place of calling the customer to the center of the city. Clear है आपको? So these shops are located in the area of the city where large number of population reside, है ना? So they are not centrally located, but they are located in any corner of the city, any part of the city where sufficient number of customers can be approached. Second, ये दोनों में कॉमन है। उसमें भी मैंने आपको बताया था सेंट्रलाइज परचेजिंग, डिपार्टमेंटल स्टोर में सारे डिपार्टमेंट के लिए परचेजिंग का काम एक ही डिपार्टमेंट करता है। सेम प्रोसेस इज फॉलोड हियर। तो इसमें भी है सेंट्रलाइज मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट। दूसरा फीचर है सेंट्रलाइज मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट। The manufacturing or procurement of merchandise for all the retail unit is centralized at the head office. तो हेड ऑफिस में जो उनका मेन यूनिट होता है वहां पर ही या तो प्रोडक्शन होता है या परचेजिंग होता है। एंड देन हेड ऑफिस सेंड द गुड्स टू द डिफरेंट शॉप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फिर हेड ऑफिस से वो सामान सारे दुकानों पे जाता है, फिर वो बेचते हैं उसको, है ना। सो देयर इज सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट जस्ट लाइक द डिपार्टमेंटल स्टोर्स। Each retail shop is run under the direct supervision of a branch manager. तो ये आप खुद की दुकान चला रहे हैं तो क्या करते हैं, हर एक दुकान के लिए एक सेल्समैन रखते हैं, उसको बोलते हैं ब्रांच मैनेजर है, सेल्स मैनेजर, है ना। थोड़ा अच्छा नाम दे दिया उसको, होता वो सेल्समैन ही है, लेकिन नाम दे दिया उसको ब्रांच मैनेजर या सेल्स मैनेजर। दैट ब्रांच मैनेजर और सेल्स मैनेजर रन द शॉप, he is responsible for that shop. So each shop is run by the supervision of branch manager who is head responsible for its day to day management. तो दुकान कब खोलेंगे, कब बंद करेंगे, प्राइस तो हेड ऑफिस ही फिक्स करता है, इसमें बार्गेनिंग पावर भी नहीं होती इन लोग के पास, दे कैन नॉट बार्गेन।
प्राइस इज प्रीफिक्स बाय द हेड ऑफिस। ठीक है, तो कस्टमर को कन्विंस करना, डेली रिपोर्ट भेजना कितना सामान बिका, दैट इज द, और स्टॉक खत्म हो गया तो डिमांड करना और स्टॉक की, दैट इज डन बाय द ब्रांच मैनेजर। Manager send daily report to the head office in respect of the sales, cash deposit and the requirement of stock। तो वो रोज बताता है कि आज इतने का सामान बिका, इतना पैसा मैंने कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है और मुझे सामान की और इतने की जरूरत है, तो रिक्वायरमेंट डेली सेल्स रिपोर्ट एंड कैश रिपोर्ट इज सेंड बाय द सेल्स मैनेजर। ठीक है, ऑल द ब्रांचेज आर कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफिस। तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है, ये भी कंपनी फॉर्म में बोलती है, दिस इज आल्सो रन अंडर द कंपनी फॉर्म, दोनों में सेम है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज ए कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। सिमिलरली चेन शॉप्स आर आल्सो रन एज ए जॉइंट स्टॉक कंपनी because it needs huge amount of capital, huge management capacity that is not possible for sole proprietor or partnership firms। So all the branches are controlled by head office, which is concerned with formulating the policies and getting them implemented। तो पॉलिसी बनाने का काम, मैनेजमेंट करने का काम सब हेड ऑफिस का होता है। प्राइस ऑफ गुड्स इन सच शॉप्स आर फिक्स्ड एंड ऑल सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस। ये इंपॉर्टेंट फीचर है इनका। एक तो फिक्स प्राइस होता है, नो बार्गेनिंग, अगर डिस्काउंट देना है तो वो हेड ऑफिस डिसाइड करेगा एंड दैट डिस्काउंट विल बी गिवन बाय एवरी शॉप एवरीवेयर, है ना। बट पर्सनल सेल्समैन कैन नॉट रिड्यूस द प्राइस or he cannot give the discounts। So prices are fixed by company or head office and all the goods are sold on cash basis, means credit facility is not allowed to the customers by the chain shops। इनका credit policy नहीं होती है, they don't give credit facility। Okay, the head office normally appoint inspectors who are concerned with day-to-day supervision of the shops in respect of quality of customer service provided, adherence to the policies of the head office etc। तो दी इनके कुछ इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो टाइम टू टाइम विजिट करते हैं डिफरेंट शॉप्स को, चेक करते हैं कि कस्टमर क्वालिटी, कस्टमर सर्विस की क्वालिटी कैसी है, कस्टमर से ठीक से डील कर रहा है कि नहीं सेल्समैन, उसको कन्विंस कर पाता है कि नहीं, और जो कंपनी की पॉलिसी है वो फॉलो होती है कि नहीं, कैश सेल्स होता है कि नहीं, है ना, फिक्स प्राइस पे सामान बेचते हैं कि नहीं, दैट इज बीइंग सुपरवाइज्ड बाय द inspectors। A chain operation is most effective in handling high volume merchandise whose sales are relatively constant throughout the year। In India, Bata's shoes stores are typical example। Similar type of retail outlets are coming up, जैसे इसने दिया DCM, Raymond और फास्ट फूड चेन ऑफ नेरूला एंड मैकडोनल्ड। These are the examples of chain shops। आप देखते हैं मैकडोनल्ड का नाम सुनते तो पानी आ गया होगा मुंह में बहुत सारे बच्चों के, है ना। तो मैकडोनल्ड का देखेंगे आप, आउट जो अपीयरेंस होता है वो सेम होता है, कहीं भी जाएंगे तो मैकडोनल्ड को आप दूर से पहचान लेते हैं उसको देख के कि मैकडोनल्ड का आउटलेट है। एंड उसकी जो रेसिपी होती है, जो वेराइटीज हैं वो हर जगह सेम मिलेंगी आपको, प्राइस भी सेम होता है शायद, एम आई राइट। मैकडोनल्ड से पिज्जा बर्गर क्या आपको मिलता है, उसमें प्राइस सेम होता है ना हर जगह। Yes, Yes, sir. sir. No, so that is the example of the अच्छा, इसमें हिंदी वाले बच्चे हैं ना, सही राम। Yes, sir. उसमें एक आप लोग एक बड़ा आपकी फेवरेट डिश है सैंडविच, है ना। या सैंडविच की कोई दुकान है, उसको हिंदी में लिखना अपना मेन्यू, तो सैंडविच को क्या लिखेगा हिंदी में वो? रेत की चुड़ैल। रेत की चुड़ैल। समझ लो आप लोग क्या खाते हो, सैंडविच खाना, मतलब सैंडविच का हिंदी नाम क्या है? रेत की चुड़ैल, है ना। ओके, इंडियन डिश है कि चाइनीज है कि अफ्रीकन है, कौन सी डिश है? सैंडविच इज विच कंट्रीज डिश? कौन सी कंट्री का सैंडविच? क्या करना, खाने से काम है ना। किसी को पता है क्या सैंडविच कहाँ का है ओरिजिनली? इंडिया का तो नहीं होगा सर, इंग्लैंड साइड का होगा। अच्छा, इंग्लैंड का आ रहा है। हाँ, इंग्लैंड का सर ही। इंग्लैंड का है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये सब चलता नहीं था पहले, पंजाब दी लस्सी,
है ना, और वो क्या पराठा और ये सब हमारा खाना था, तो चेंज हो गया। ओके, एडवांटेजेस क्या है चेन शॉप्स के? एक तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। When some economic activity is conducted at a large scale, there are benefits in cost. Some cost is being reduced. When we purchase goods in bulk quantity, we are able to purchase material at a low price. Plant capacity can be utilized fully. Workers capacity can be fully utilized. This way, cost tends to be reduced. When we produce goods at a large scale, its cost tends to reduce up to some extent. You know? So that is the advantage which is called as economies of scale or advantages of large scale production. As we discuss in chain shops, procurement or production is done centrally. Goods are manufactured or purchased at single place. That means it is to be produced or procured at a large scale. And when we produce or procure goods at a large scale, its cost is reduced. Okay, that is the benefit in case of the multiple store or chain store. दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका वो है एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन। मैंने बताया इसका पर्पज ही क्या है। द पर्पज ऑफ चेन शॉप इज टू एलिमिनेट मिडिलमैन। Wholesalers and retailers are eliminated. Subsequently, the profit which is to be charged by the wholesaler or retailer, that is being reduced. So customers are able to get the product at a relatively lower price. Okay, so that is the main purpose of this, to eliminate the middleman. No bad debts. There is no chance of bad debts. क्यों नहीं होता bad debts? अभी भी आपको होता है फीचर्स में। These shops do not sell goods on credit, so they sell goods only on cash. So because of cash sales, there is no chance of any bad debts. ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो सकता है इसमें। ट्रांसफर ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि मैंने बताया कि देयर आर these shops are located in every city, or there may be many shops in the same city. So if there is a less demand in one part of the city or less demand in one city, and a lot of stock is lying in that shop, that stock can be transferred from that shop to the other shop in another city where there is a huge demand. है ना, एक दुकान पर अगर डिमांड नहीं है, सामान पड़ा हुआ है, so that material can be shifted, can be transferred to the shop where there is a huge demand or shortage of the stock. इससे क्या होता है कि जो आउटडेटेड स्टॉक होने से बच जाता है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ गुड्स. सो गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन शॉप टू द अनदर शॉप. इफ देयर इज लैक ऑफ डिमांड इन वन शॉप, द गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू द शॉप वेयर देयर इज मोर डिमांड. डिफ्यूजन ऑफ रिस्क होता है. डिफ्यूजन ऑफ रिस्क का मतलब होता है कि दिस इज नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स. 50, 100 शॉप्स आर देयर and maybe some shops are running in a loss. कुछ shops हो सकता है loss में चलेंगी, but their loss can be covered by profit of other shops. So some shops may be in loss, but their loss will be covered by the profit of the other shops. That is called diffusion of risk. So risk of loss in few shops will be diffused by the profit of other shops. Okay, it is not possible that all the shops are running in a loss. Maybe some shops will be in a loss, but their loss will not impact the company overall because it will be covered by the profit of other shops. लो कॉस्ट है, ये तो बता ही दिया आपको मैंने. लो कॉस्ट क्या होता है? बिकॉज लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन, दैट्स व्हाई कॉस्ट इज लो एंड कस्टमर्स आर एबल टू गेट द प्रोडक्ट एट ए लो प्राइस. फ्लेक्सिबिलिटी, ये अच्छा फायदा है इसका. फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मींस व्हाट? फ्लेक्सिबिलिटी मींस होता है चेंज ना, पॉसिबिलिटी टू चेंज. सो इफ कंपनी फाइंड्स दैट इन सम लोकेलिटीज some shops are not running well, they are not doing well, or there is no demand for our product in locality, कोई डिमांड ही नहीं है हमारे प्रोडक्ट के लिए, तो we can stop that shop, we can shut that shop, बंद कर सकते हो दुकान को. And if we find in some locality there is huge demand, we need more shops, and number of shops can be increased. So if there is no demand or less demand, shops can be closed. And if demand is increasing, then we can add new shops and can increase the number of shops. So that is called flexibility, that is there in a chain shop system or multiple shop system. Okay. Limitations क्या है इसकी? ड्रॉबैक्स क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स.
because these shops are run by one manufacturer, so these shops sell only the goods of one single manufacturer. No, so they do not have variety, or they have whatever goods are produced by single manufacturer. अब बाटा के शोरूम में जाएंगे तो जितने भी शूज की वैरायटी मिलेंगी वो केवल बाटा कंपनी की मिलेंगी आपको. So whatever varieties are available in Bata company, that is will be there, but other company products will not be there. So your selection will be limited up to the Bata products. और किसी कंपनी की डिफरेंट वैरायटी जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी. आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे तो क्या होगा वहां? डिपार्टमेंटल स्टोर में they have that variety of different companies, so wider choice is there, but in chain shops choice is limited up to the product of one single manufacturer. Lack of initiative means that these shops, chain shops, are run by managers. He is a salesperson, salaried person, paid person, and his salary is fixed. इसलिए वो he does not take much interest in motivating the buyers, convincing the buyer to purchase the product, because his salary is fixed and he takes it just officially. खरीदो तो ठीक है, नहीं खरीदो तो ठीक है. He is not like a shopkeeper कि अगर नहीं खरीद रहा तो कस्टमर उसको कन्विंस करेगा, मोटिवेट करेगा. That is not there. That lack is there. Initiative is not there on the part of the salesman. Personal touch नहीं है. Okay. Personal touch नहीं, because that personal warmth is not there like salesman and salesperson and customer. जैसे बिजनेसमैन और कस्टमर के बीच में होती है, वो वाला पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है यहाँ पर, इतना पर्सनल वार्मथ नहीं होती है. डिफिकल्ट टू चेंज द डिमांड. डिफिकल्ट टू चेंज का डिमांड का मतलब यहाँ पर है कि सडनली डिमांड हैज बीन चेंज, या तो डिमांड एकदम बढ़ गई या डिमांड एकदम कम हो गई. इन बोथ द कंडीशंस these chain shops are not able to face this situation. डिमांड एकदम बढ़ जाएगी तो दे विल नॉट बी एबल टू मीट द डिमांड, क्योंकि उतना प्रोडक्शन एकदम बढ़ा नहीं पाएंगे. और डिमांड एकदम कम हो गई तो फिर भी वो भी उसको दे हैव टू फेस ह्यूज लॉसेस, बिकॉज देयर गुड्स आर ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. तो उनकी गुड्स आउटडेटेड हो जाएंगी, अनसोल्ड स्टॉक्स पड़े रहेंगे उनके पास इफ द डिमांड इज फॉलिंग. सो देयर इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम to change the demand or to adjust themselves according to change in demand. They are unable to adjust themselves according to change in the demand. That is the drawback of this. एक और बोल सकते हैं कस्टमर के लिए लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी. इनके यहाँ क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती है कस्टमर के लिए, which is given by the departmental store or other shops also. ठीक है. Now what is the difference between departmental store and multiple shops? दोनों में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस है लोकेशन. क्या डिफरेंस है लोकेशन का, क्या पता है आपको दिव्या? What is the difference in location? हाँ दिव्या, साईराम. प्रकार, what is the difference in location? प्रकार, प्रियांशु. हाँ प्रियांशु. संभव बताओ, संभव क्या है? सर डिपार्टमेंटल स्टोर्स सिटी के सेंटर्स में होती हैं, और जो चेन स्टोर होती है वो पॉपुलेशन जहाँ पे ज्यादा होती है वहाँ पे. हाँ अभी तो बताया आपको, डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर सेंट्रली लोकेटेड. Multiple shops are located in any corner of the city where sufficient number of customers or population is residing, है ना? That is the difference in location. दूसरा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. अदिति, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. सर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में डिपार्टमेंटल स्टोर का एम रहता है कि एक ही रूफ के नीचे सब कुछ अवेलेबल हो, लेकिन मल्टीपल शॉप्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कुछ ही लोगों के लिए, मतलब जो चीज़ें से मतलब बहुत लिमिटेड लोगों के लिए वहाँ पर चीज़ें होती हैं.
Okay, the range of product means that variety of products, है ना? So in departmental store we get wide range of the product. बहुत बड़ी रेंज होती है उनके पास. They offer the products of different manufacturers, different companies. So customer has wider choice in a departmental store, है ना? Wider range is available. But in case of a chain shop sells goods only one manufacturer. So selection is limited, choice is limited because only the products of one manufacturer will be available in one chain shop. That is the difference in case of the range of product. Services offered, Urvi. Difference in services offered. क्या डिफरेंस है? चेन स्टोर्स में जो सर्विसेज होती हैं वो मतलब वो जो ब्रांच मैनेजर होता है वो ही सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हेड ऑफिस तक पहुंचाता है, और डिपार्टमेंटल स्टोर में जो मतलब उसका मैनेजर होगा उस स्टोर का, वो सारी इंफॉर्मेशन अपने हेड ऑफिस तक पहुंचाएगा. नहीं, ये नहीं. Services offered we discussed. Departmental store give many services to their customers like telephone facility, restroom facility, मैंने बताया था ना कल आपको, home delivery facility. All these services are offered by departmental store to their customers. But chain shops do not offer any such service to their customer. Even chain shops do not offer credit facility to their customers. That is the difference in services provided. Services, what services are provided to customers? So departmental stores provide many services to their customers. Now, hotel, restroom, saloon, cafe, home delivery, these all facilities are provided by departmental store to their customers. But chain shops do not provide any such facility to their customers. Okay, pricing. Okay. प्राइसिंग में क्या होता है? इन केस ऑफ मल्टीपल शॉप्स और चेन शॉप मैंने बताया दे फॉर्म यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी. उनकी पूरी कंट्री में जहां भी दुकान होगी सब जगह एक ही प्राइस होता है, एंड दैट प्राइस इज फिक्स्ड बाय द हेड ऑफिस, एंड दैट ब्रांच मैनेजर कैन नॉट चेंज द प्राइस. इवन ही कैन नॉट ऑफर द डिस्काउंट. जब तक कंपनी नहीं बोलेगी तब तक वो डिस्काउंट नहीं दे सकता. So price and policy of pricing both are decided by the head office. In case of departmental stores, also the prices are fixed, but the prices may vary from one departmental store to other departmental store. Even it may be owned by the same company. Departmental store may be owned by the same company, but still we will find different prices in the departmental stores of the same company in different cities. So there is possibility of difference in prices, and this different departmental stores can offer different schemes or offers to the customers. ठीक है? Class of customers. कल बताया था मैंने आपको कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं दे आर कॉल्ड रिच मैन शॉप. तो डिपार्टमेंटल स्टोर में जो कस्टमर जाता है वो अपर क्लास और मिडिल अपर क्लास का कस्टमर होता है. दे प्रेफर टू गो टू द डिपार्टमेंटल स्टोर, है ना? अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमिकली बात कर रहे हैं हम लोग. So upper class or middle upper class, they like to go to the departmental store, and this chain shops are visited by middle class. है ना? Middle class के लोग और lower middle class, lower income group people, they are interested in chain shops or multiple shops. Credit facility तो पता ही है आपको. Departmental stores provide credit facility to their regular customers. ठीक है, but chain shops do not provide credit facility. और flexibility है, departmental stores are inflexible, है ना? उनमें चेंज करने के चांस बहुत नहीं होते हैं. But chain shops are flexible. Just before we discuss that, chain shops can be increased or can be reduced depending on the demand. अगर डिमांड बढ़ती है तो कंपनी नई चेन शॉप से स्टार्ट कर सकती है, और डिमांड कम हो जाती है किसी लोकेलिटी में तो दैट शॉप कैन बी क्लोज्ड. सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट चेन शॉप सिस्टम इज मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर्ड टू द डिपार्टमेंटल स्टोर्स.
तो बस इतना ही है इस चैप्टर में, तो आपके सिलेबस में आगे का पार्ट तो हट गया है। अगला चैप्टर तो आपका है फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस पार्ट 1। पार्ट 2 तो बिल्कुल ही नहीं है आपके यहाँ। पार्ट 1 में से भी कुछ टॉपिक नहीं है, तो मैं कल बता दिया आपको कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक नहीं है इसमें, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस और फॉरेन ट्रेड और ओवरसीज ट्रेड, 3 नाम दिए इसको। इंटरनेशनल बिजनेस और फॉरेन ट्रेड और ओवरसीज ट्रेड, ओके। So the trade which takes place beyond the geographical boundaries of a nation, that is called as international trade or foreign trade, or the trade in which buyers and sellers of two countries are involved, that is called as foreign trade. It is also called overseas trade because one country is located in one side of the sea, other country is located on the other side of the sea or ocean, and this trade takes place using the waterways or airways. So we have to cover the seas. That's what is called overseas trade. We have to go by air over the sea. So it is called overseas trade. इसका नाम कुछ भी मीनिंग है कि it is the trade in which buyers and sellers of two different countries are involved. एक कंट्री का बायर है, दूसरी कंट्री का सेलर है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड और ओवरसीज ट्रेड, ठीक है। समझ में आएगा आपको? यस सर। यस सर। Now what is the difference between international trade and international business? जैसे आपने पढ़ा था ना वो डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स, ऐसे यहाँ पर है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल बिजनेस एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंटरनेशनल बिजनेस इज ब्रॉडर कंसेप्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड इज ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, है ना। International business is a broader concept and international trade is a part of the international business. Okay, international trade includes only export and imports of goods and services. ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या था? केवल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट इंटरनेशनल बिजनेस इंक्लूड्स not only export and import of goods and services, but it also includes, इसमें दिया है इंटरनेशनल टूर्स, ट्रेवल एंड टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, है ना। उसके बाद है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज प्रोडक्शन, ओके। उसके बाद है ओके, सो दैट इज द बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस। तो दोबारा पढ़ रहा हूँ इसको। पहली बात तो समझ में आ गई आपको कि इंटरनेशनल बिजनेस इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट देन इंटरनेशनल ट्रेड। International trade is only the part of one activity or part of the international business which includes export and import of goods. But international business is a broader concept which includes many more activities as, in addition to the export and import of goods. So what it says, international trade comprising export and imports of goods. इतना ही है इसमें, okay, as important component of international business, but of late any scope of international business has substantially expanded. International trade in service such as international travel and tourism, transport, ये सब services हैं। उसके बाद है development and foreign investment, overseas production, okay, so this is the part of the international business. So international trade includes only export and import of goods. International business includes export and import of goods, export and import of services, foreign direct investment,
and overseas production. That all is the part of the international business. That's why it is said that international business is a broader concept as compared to international trade. Clear है आपको ये? यस सर। ठीक है। अब एक बेसिक क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड? हमको फॉरेन ट्रेड की जरूरत क्या पड़ती है? व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल बिजनेस और फॉरेन ट्रेड? क्यों चाहिए हमको? व्हाई डू वी नीड दिस? अच्छा, आप गेल से बाहर सामान खरीदने गुना राधोगढ़ क्यों जाते हैं? या राधोगढ़ के लोग सामान खरीदने राधोगढ़ के बाहर गुना क्यों जाते हैं? या गुना के लोग इंदौर क्यों जाते हैं सामान खरीदने? क्या रीजन है उसका? सर और अच्छी क्वालिटी और वैरायटी मिल जाएगी। अच्छी क्वालिटी वैरायटी है, ठीक है। और कुछ? सर रेट प्राइस कम मिलती है। हाँ जी, सर प्राइस कम मिल जाती है बाहर। प्राइस कम हो जाता है, ओके। और कैपेबिलिटी। हाँ जी, कैपेबिलिटी सर कि मतलब हर चीज जरूरी नहीं है कि राघवगढ़ खरीद या बेच पाए। हाँ जी, ओके, ये भी हो सकता है, ओके। और कुछ? ओके, सो द बेसिक रीजन बिहाइंड फॉरेन ट्रेड is that number one, every country cannot produce everything. क्या होता है मैंने? Every country cannot produce everything. और number two, cannot produce equally well. That's all. That's why we need foreign trade. क्या बताया? Every country cannot produce everything. और number two, cannot produce equally well. Why can we not produce anything in India? Because we are not gifted with those natural resources which are needed. हम कितनी भी कोशिश करें तो जितना पेट्रोल चाहिए उतना पेट्रोल हम बना सकते हैं अपनी कंट्री में? नो सर। Why? Because we are not gifted with petrol reserves, है ना? क्रूड ऑयल रिजर्व है ही नहीं हमारी कंट्री में। तो हम जब निकालेंगे गड्ढा खोद को तो पानी निकलेगा, पेट्रोल नहीं निकलेगा हमारे यहाँ। और सऊदी अरेबिया वाला खोदेगा तो क्या निकलेगा वहां? पेट्रोल डीजल है, क्रूड ऑयल जो भी है ना। सो दैट इज द बेसिक रीजन दैट नेचर हैज गिफ्टेड एवरी कंट्री, बट दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। सम कंट्रीज हैज वन थिंग, अदर कंट्रीज हैव, सो वी आर नॉट इक्वली गिफ्टेड विद द सेम थिंग, है ना? जैसे आप हम अपनी बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की, सो ऑल ऑफ अस आर गिफ्टेड। बच्चों की बात करें तो सारे बच्चे गिफ्टेड हैं, बट दीज गिफ्ट्स आर डिफरेंट। देखा आपने कभी? आप सब बच्चों में सब यू ऑल आर गिफ्टेड, भगवान ने सबको बहुत गिफ्ट दिए हैं, बहुत रिच बनाया आपको, लेकिन सबकी गिफ्ट सेम नहीं है। समवन इज गुड इन सिंगिंग, समवन इज गुड इन स्टडीज एकेडमिक्स, समवन इज गुड इन प्लेइंग, समवन इज गुड इन अदर एक्टिविटीज। व्हाट इज दैट? आपके पास हर एक के पास गिफ्ट तो है, लेकिन डिफरेंट गिफ्ट्स हैं, है ना? ठीक है, तो सेम थिंग हैपेंस विद द कंट्रीज। वी हैव नेचुरल रिसोर्सेज, but every country has different types of natural resources. That's why whatever resources we have and whatever goods can be produced with the help of these natural resources we can produce. But there are many other things which is needed by the people of the country, but because we do not have natural resources for them, so we cannot produce them in our countries. That's why we need to purchase them from other countries. और अगर हमारे यहाँ बनती है और दूसरे में नहीं बनती है तो फिर वो हमसे खरीदेंगे। जैसे टी प्रोडक्ट है ना, टी कॉफी है, तो बहुत सारी कंट्री से वहां नहीं होता, हमारे यहाँ होता है तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसको। पेट्रोल प्रोडक्ट है, दूसरी चीजें जो हमारे यहाँ नहीं होती है, कम होती है, तो हम बाकी लोग से मंगाते हैं। सो सम आइटम्स आर देयर व्हिच वी कैन प्रोड्यूस बट अदर्स कैन नॉट प्रोड्यूस, एंड सम आर देयर व्हिच अदर्स कैन प्रोड्यूस बट वी कैन नॉट प्रोड्यूस। सो दिस इज म्यूचुअल हेल्पिंग सिस्टम है। जो हमारे पास है वो आप ले लो, आपको जरूरत है तो, और आपके पास जो सामान है और हमको जरूरत है तो हम आपसे ले लेंगे। दैट इज द बेसिक रीजन ऑफ फॉरेन ट्रेड। और दूसरा है, एवरी कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वली वेल। इट मे बी दैट वी आर एबल टू प्रोड्यूस, हो सकता है कुछ चीज हम बना लें अपनी कंट्री में, है ना, ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं, बट इट्स कॉस्ट विल बी हायर।
तो अगर कोई प्रोडक्ट सपोज बनाना है हमको, शक्कर हम सपोज करो कि अपनी कंट्री में बना लें किसी भी, और अपनी कंट्री में हमको बना के शक्कर 50 रुपए किलो का भाव पड़ रहा है उसका, और अगर हम वही शक्कर इम्पोर्ट करें तो हमको 20 रुपए किलो मिल रही है बाहर से, तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, 50 रुपए किलो की शक्कर बनाना कि 20 रुपए किलो में परचेज करना बाहर से? साईराम, विच ऑप्शन इज बेटर? हम 50 रुपए किलो बना पा रहे हैं, दूसरा 20 रुपए किलो बना रहे हैं, कौन सा बेटर ऑप्शन है? सर दूसरा भी सर 20 बना है। हाँ जी, सर बाहर दूसरा से वाला बाहर से लाना क्यों बनाए, फालतू मेहनत करें, जब 20 रुपए किलो वो सामान बाहर मिले तो 50 में क्यों बनाए? अब देशभक्ति नहीं आ रही इसमें, देशभक्ति की बात नहीं है, बात यह कि व्हाट इज बेनिफिशियल टू द, ये भी देशभक्ति है कि हम अपने लोगों को कम पैसे में सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग, है ना? एनिमी कंट्री से नहीं खरीदेंगे, लेकिन बाकी जो कंट्रीज है, फ्रेंड कंट्रीज, हम उसको ले सकते हैं हम लोग। सो we would like to purchase it because we are not able to reduce the cost up to that level because of limitations. हमारी अपनी लिमिटेशन है, हमारे पास लेबर नहीं है स्किल उस काम के लिए, या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हम जैसे तैसे करके बना तो लेंगे, लेकिन हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगी उसकी। तो इस कंडीशन में एक अच्छा डिसीजन क्या होगा कि इन प्लेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बाय आवर ओन वी हैव टू परचेज these goods from those who are capable in making these products and their cost of production is less. So basic reason behind foreign trade is this: every country cannot produce everything, or every country cannot produce equally well. Equally well means at the same cost. Some countries are able to produce, but their cost of production is higher. Some countries are able to produce at a lower cost. So those countries which either cannot produce or can produce at a higher cost, they would like to purchase it from others. Okay. So Sairam, thank you. We will continue with this topic in the next meeting also, next class also. जब भी हमारी क्लास होगी BSc तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे. Okay, so let us have Santi thought, then we will continue. Om Shanti Shanti Shanti. Sairam. थैंक यू सर, सायरम सर। Sairam. Sairam sir. Sairam sir. Sairam. Sairam.